میں آپ کا نام ہی نہیں لیا ہے، نہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. پلیز آپ مجھ سے بات نہ کریں، نہ ہی میرا کوئی نام لے. تو میں بہن سے سوال کرنے آئی تھی، میں ابھی نیچے جا رہی ہوں تو آپ سب کی باتیں سنوں گی. نہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آن لائن میں ڈھونڈ رہی ہوں فون لیپ ٹاپ پہ. حج بھی کیتی جانتے ہو، لو بھی پیتے جانتے ہو. یہ بات کرنے کا موقع دیجیے پلیز. موقع لے لیجیے پلیز. یہ موقع وجہ وہ آپ سے پہلے بھائی لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ سے پہلے میں اس لوگ آ کے ٹاپک، بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، میری باری آئے گی، بتا دیں جلدی. میں عمرہ اور حج کے ایکسپیرینس کرو شیئر کرو کرنا اب کرو اگر اب میرے آپ کرو. وطن کا کریں نغمہ، بات، اویس بھائی کریں بات. میرے وطن کرو کا اب بات نغمہ یار. ہوا تو میں ضرور او باجی رہن دے، باجی نہیں چھٹو وہ دیکھیں وہ تھلے. میرا ٹیگ کر کے باجی کیا ہے. چھوڑیں پہلے تو میں ان کا نام آپ لکھ کو رہی ٹیگ ہوں، کس نے کیا؟ کسی نے آپ کو ٹیگ کس نے نہیں کیا، ٹیگ کیا کسی نے ہے؟ ٹیگ نہیں کیا، کسی نے وہ ٹیگ نیچے نہیں. لکھ رہا ہے نا. او باجی نہیں لکھ رہا آپ کو، آپ وہ مجھے اس کو لکھ دیکھ لیں. رہے ہیں، وہ مجھے لکھ رہے ہیں کہ یہ نغمہ سنا دیں، نغمہ ہے سنا دیں. وہ آپ کو نہیں لکھ رہے باجی، چھوڑ دیں اس کو. وہ مجھے کہہ رہے ہیں، وہ میں نے اپنا نا لیپ ٹاپ آن کر رہی ہوں، یہ کون سی وہ ہے مجھے او نہیں باجی پتا. آپ ان کو پرائیویٹ میں سنا دیجیے گا یار، یہاں پہ جو بات کیا؟ عمرہ حج کی ہو رہی ہے وہی کریں، چھوڑ دیں ان کو. اچھا، اس کے کوئی اپوزٹ ہے؟ چلے ویس بھائی بات کریں یار، بہت ٹائم شارٹ ہے یار، جلدی جلدی بات کریں، جی بہت جی، لوگ یہ ہیں. بھائی یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی کہ عمرہ اور حج کے ایکسپیرینسز شیئر کریں. ہاں تو بھائی جی، میں دو باتیں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جب میں اپنی والدہ کا چہرہ دیکھتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے حج کر لیا. ٹھیک ہے، جب میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، اور وہ جب مسکراتی ہیں میری طرف، مسکرا کے میری طرف دیکھتی ہیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ میرا حج ہو گیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اچھی بیگمات ملی ہیں، تو جن کی زندگی عورتوں نے جو ہے وہ آسان کر دی ہے جینے کے لیے، تو وہ بھی ان کا بھی ایک سمجھے ایک حساب سے عمرہ ہی ہوتا ہے کہ اچھی عورت مل جانا جو اس کو تنگ نہ کر لو کرے. گل. ٹھیک ہے، جو اس کا اللہ جو ہے اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یار کیا تو چنگا رلاؤ گے ہوندا گل، پگلے؟ تو چنگا ہوندا گل ہی نہ کردا. عثمان نہ تنگ کرو مسومڑے کو. نہیں کہہ رہا کہ ان کا نہیں نوورڈ بھائی تو میری بھی نہیں عورتوں نے نوورڈ بھائی کا ایکسپیرینس ہی عورتوں نہیں دے ہے پیچھے جس پہ کا شیئر کر رہے ہیں. عورتوں دے پیچھے پہ جائے گا. بڑا ایسا بندہ ہے، بڑے سخت الفاظ بولتا ہے، اس کو منع کریں. نہیں نوورڈ بھائی نہیں بولتے ہیں، میں نے کبھی بھی نہیں سنا ہے. توبہ توبہ، فرمائش نہ کرنا، فرمائش نہ کر دینا کہیں اور. نہیں کبھی بھی نہیں سسٹر، میں نے سنا اپنے گنہگار کانوں سے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. نہیں تو یہ بچہ جب آتا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ جس طرح نا یہ اگلے کو کرتا ہے کہ بولو، اس کے بعد یہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے اس ٹاپک پہ نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں بھی کچھ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتی ہوں. جزاک اللہ. آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. کبھی ایسے براڈ پہ گئی نہیں، آج بس سمجھے پہلی بار ہی آئی ہوں. ٹاپک ہی ایسا ہے نا. نوول جو بھائی نے بات کی نا ماں کی، تو میں واقعی ہی سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی بات بالکل سچی ہے. اگر جو اپنے ماں باپ کا، جو ماں کی عزت کرتے ہیں اور اس کی بیماری میں اس کی بہت زیادہ اس کا جو علاج ہو رہا اور آپ اس کی خدمت کریں، تو واقعی یہ ڈائریکٹ جنت ہی ہے. خدا کہتا ہے کہ اگر آپ شارٹ کٹ جنت لینا چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کر لو. اور یہ چیز میں نے آزمائی اور دیکھا ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک بات پہ بہت ہی تکلیف ہوئی. میں کتنی بار گئی ہوں وہاں پہ، جو ہمارے اپنے پاکستانی ہیں نا، آپ یقین کریں اتنا دکھ ہوا مجھے اس دفعہ کہ خانہ کعبہ جہاں پہ وہ صفا مروہ ہے، بس تھوڑا ہی فاصلہ تھا، عورت آئی، ساتھ مرد تھا، 2 بچے تھے. اس قدر وہ جھوٹے روئے نا کہ ہمارا بچہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، یہ میں کہتی ہوں کہ میرا دل پگھل گیا. اب خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے انہوں نے اتنا جھوٹ بولا. میرے سے جتنی ہو سکا میں نے دیا انہیں. میں نے کہا جائیں آپ اپنے بچے کا علاج کروائیں، سارا ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے تھوڑی دیر بعد، کچھ دیر 2 دن بعد دیکھا تو وہ سارا جھوٹ تھا. اور مجھے یہ اتنا اس بات کا دکھ ہوا کہ میں نے کہا خانہ کعبہ ایک ایسی چیز، ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان جاتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اس خدا کے آگے ہم نے حاضر ہونا ہوتا ہے. وہاں پہ تو میں کہتی ہوں کوئی یاد ہی نہیں رہتا. وہ اتنا ایک خوبصورت نظارہ ہوتا ہے. جب آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے خانہ کعبہ پہ تو آپ کہتے ہیں میں تو کوئی اور ہی دنیا میں آ گیا. اور جب ہمارے پاکستانی جا کے اور ایسے لوٹتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی کہ میں کوئی یا کسی کے خلاف. مجھے دکھ کہتے کیا ہوتا ہے، میں کہتی ہوں کہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے اتنا جھوٹ خانہ کعبہ. اور پھر یہ اچھا ہوا آپ نے یہ شیئر کیا. اگر ایسا کسی کے ساتھ، سوری میں بول رہی ہوں، اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی ایکسپیرینس ہو نا، تو وہاں پر جو مقامی لوگ ہوتے ہیں یا پھر جو ہیلپ کے لیے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں
ये मेरे साथ भी हुआ था, और मैंने एक दफा तो कर दिया, लेकिन फिर जब मैंने देखा उनको दूसरी जगह पर मतलब यही काम और कहानी जो है सेम सेम, तो फिर वहाँ के लोगों ने जब उनसे पूछा जो हेल्प कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये इनको ना दो, बिल्कुल ना दो, ये करते ही हैं। हाँ, मुझे दुख ज्यादा ये होता है ना कि जब आप खाना काबा पे जा रहे हो तो वो कहाँ गया आपका ईमान, कहाँ गई हजरत मोहम्मद सल्लम के बारे में इतनी बातें, इतनी आपको खौफ नहीं आता कि हम किस जगह पे खड़े। अरे जहालत है, जहालत है फिर बहुत मेरी बड़ी। गई, वो कहती है मेरे से नहीं यही कुछ हुआ, तो मैंने कहा, कहती है मैं दे देती, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा देने को तो देखिए हम मदद तो हर इंसान जो खौफ खुदा रखता है ना वो हर इंसान की मदद करता है, लेकिन खाना काबा में खड़े होके ये अपने खुदा को यानी क्या क्या कर रहे हैं। मुझे आप यकीन करें, मुझे उस बात से ना अभी भी मेरे सामने वो नज़ारा आता है कि ये सामने खाना काबा और वो औरत और उसका मियाँ और 2 बच्चे पैसों के लिए इतना धो रहे थे। और दूसरी बात, मैं एक दिन यानी कि हर इंसान अपनी अपनी खुशी बताता है कि खाना काबा की, मैं गई तो रात का 1 बजा था, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उठ के खाना काबा चली गई। मैंने कहा जाऊं जरा थोड़ा सा अपने खुदा को और नज़दीक से देखूं। आप यकीन करें दरवाज़ा खुला हुआ था खाना काबा का, और यानी कि हर इंसान हसरत करता है कि अंदर देखें क्या है। फिर मैंने देखा अंदर सारा कुछ बड़ा खूबसूरत सा। मैं तो कहती हूँ इंसान अपने खुदा में खो जाता है, उधर जाके उससे बातें करते हैं, उससे यानी कि हम उससे प्यार करते हैं। तो इतना ही कहना था। ये मेरे खाना काबा के और मेरे उम्रे के मेरे ये जज्बात है कि मुझे बहुत खुशी महसूस होती है जब मैं उधर जाती हूँ, और मैं अपने खुदा को देखती हूँ उधर। फिर मैं रोशनी, कभी आप रात को जाएं तहज्जुद के वक्त तो खाना काबा पे ऊपर इतनी रोशनी होती है, बंदा कहता है वाकई खुदा ने जो जो कहा है वो बड़ा सच है। और नौवन भाई ने जो कहा है ना माँ का, वो वाकई ये बात बिल्कुल सच्ची है। मेरी माँ बहुत बीमार थी, मैं उनका इलाज हॉस्पिटल में होती, सारी रात उनके पास होती, तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं हज करूं। तो मैं ख्वाब में देखती हूँ कि मैं अपनी माँ के पास बैठी हुई हूँ, और आप यकीन करें कि कोई मजाक की बात नहीं है। इधर ये मीडिया ऐसा है, फिर सारे लोग हंसते भी हैं। तो मैंने देखा कि दीवार पे खाना काबा की तस्वीर बनी हुई है, तो मैं ख्वाब में उन्हें कहती हूँ कि हाय मैंने तो हज पे जाना था। तो उन्होंने कहा आपने कहाँ जाना है, खाना काबा तो आपके पास है। यानी वो मेरी माँ मेरे पास थी। तो मैं कहती हूँ कि जिसने अपनी माँ की खिदमत की है उसने वाकई ये बात बिल्कुल सच है। कुरान जो कहता है ना कि माँ, अल्लाह कहते हैं मेरा नाम और माँ का। लेकिन बेचारे बापों को पीछे क्यों रख देते हो आप लोग, मुझे ये नहीं समझ आती। बापों का भी कुछ बताया करो, बेचारे वो तो बड़े मासूम होते हैं। यही तो वजह है, औरतें इसी वजह से औरतें आगे निकल जाती हैं। सफिया नहीं, ये बात भी सफिया, एक बात है, जो माँ की इतनी इज्जत और कदर करता है वो बाप की जरूर करता होगा। बाप की रिस्पेक्ट होती है, वो आइडियल होता है अपनी बेटियों का और औलाद का। ठीक है, मैंने बड़ी बातें कर ली। अच्छा, अब मैं बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी नहीं भाई आए हमारे पास, नज़ीर भाई जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, मैं बड़ी देर से सुन रहा था, लेकिन अपना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है जो उससे ये मैंने नतीजा निकाला है कि ये दोनों काम बंदे की जवानी के हैं। बुढ़ापे का बंदा पूरे अरकान नहीं अदा कर सकता वहां पर। बूढ़ा बंदा वहां ना उम्रे के अरकान पूरे कर सकता, ना हाजी पूरे कर सकता। ये दोनों काम जवानी के हैं, जवान बंदे का काम है ये। और अगर मौका ना मिले जवानी में तो भाई बुढ़ापे में आप देखें बंदा अरकान ही नहीं अदा कर सकता। जाता है, करता है, कोशिश करता है, लेकिन ये अरकान नहीं अदा कर सकता। वो अपने पूरे मौका दे मुझे, वो अरकान नहीं अदा कर पाता। देखें अब आमिर नज़ीर भाई ये वो क्या तो बोल आप ही रहे पूरा हैं? नहीं कर सकता। मैंने कहा कि बूढ़ा बंदा रमजान में चला जाए उम्रा करने, बहुत वो आप नहीं कर पाएगा वहां पर। इनको म्यूट करें। मैं पाँव ही जमीन पर नहीं टिकते बंदे के। नहीं भाई, आप सुन नहीं रहे दूसरों की बात। अभी आपकी आई आवाज मुझे। शुक्र, मैं हल्का हल्का बोल रहे हैं, दर्द मारे। चले बोले बात करें। हल्का हल्का डर, किससे डर रहे हैं यहाँ पे? एक एक्सपीरियंस, हमने देखे ना लात वहां पर। जो बात आप कर रहे थे ना, मैं सिर्फ उसके लिए एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूँ। जी प्लीज। मैंने अर्ज भी किया कि इसको रिकॉर्ड कर लें। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, हज के बारे में, ये काजी ज़हूर अकमल साहब हैं।
जिनका शेर है ना, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाम में मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल गुलाम अहमद को देखे कादियाने। ये उनका एक मजमून मेरे सामने खुला हुआ है, 18 दिसंबर 1922 का अल-फजल अखबार है, उसमें खोलेंगे तो लिखा हुआ है, मज़ार पुर अनवार हज़रत अहमद मुख्तार। जलसे पर आने वाले बाज़ दोस्त यक्कों के अड्डे ही से बाहर दारुल उलूम में चले जाते हैं। यक्के से मुराद वो तांगा होता है जिस पर बटाला से लोग उतर कर आते थे। यक्कों के अड्डे ही से बाहर दारुल उलूम में चले जाते हैं जहाँ उनके क़याम का इंतज़ाम होता है। बेशक ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अयाम जलसा में या इसके बाद वतन वापस जाने से पेशतर कुछ ना कुछ वक्त मकबरा बहिश्ती में हज़रत मसीह मौद के मज़ार पुर अनवार पर हाज़िर होने का ज़रूर निकालना चाहिए। क्या मेरे अहबाब को ये मालूम नहीं कि लोग मक्का मुअज़्ज़मा जाते हैं तो रोज़ा रसूल पर हाज़िर होने के लिए कई मंजिलों के सफ़र की सऊबत बतैयब खातर उठाते हैं, बल्कि अगर बगौर देखा जाए तो असली सऊबत सफ़र ही है मक्का मुअज़्ज़मा व मदीना मुनव्वरा के दरमियान। ये सब क्यों? महज इसलिए कि अपने हादी और रहनुमा के मरकद मुतहर की बरक़ात से बहरा अंदोज़ हूँ और गुंबद खज़रा में सोने वाले को अपनी ज़ुबान से सलाम पहुँचाएँ। तो फिर क्या हाल है उस शख्स का जो कादियान दारुल अमान में आए और 2 कदम चलकर मकबरा बहिश्ती में हाज़िर ना हो, जिसके लिए अल-वसीयत में मरकूम है कि ये इन लोगों की आरामगाह है जो अपने कारनामों की वजह से हमारे लिए उसवा-ए हसना है। फिर इसमें वो रोज़ा मुतहरा है जिसमें इस खुदा के बरगज़ीदा का जिस्म मुबारक मदफून है, जिसे अफ़ज़लुर रसूल ने अपना सलाम भेजा और जिसकी निस्बत हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन ने फरमाया यदफ़नु माई फ़ी कब्री, यानी वो मेरे साथ मेरे कब्र में दफन होगा। इस एतबार से मदीना मुनव्वरा के गुंबद खज़रा के अनवार का पूरा परतो इस गुंबद बैज़ा पर पड़ रहा है। समझ गए हैं इसका तर्जमा? यानी इस लिहाज से मदीना मुनव्वरा का जो गुंबद खज़रा है उसके ऊपर जो अनवार की बारिश है उसका साया इस गुंबद बैज़ा पर पड़ रहा है, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के कब्र के ऊपर पड़ रहा है। और आप गोया उन बरक़ात से हिस्सा ले सकते हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकद मुनव्वर से मखसूस हैं। समझ आ गई ये बात? यानी आप उन बरकतों से हिस्सा ले सकते हैं जो बरकतें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र के ऊपर, आपके रोज़े के ऊपर, गुंबद खज़रा के ऊपर आपको हासिल होती हैं। क्या ही बदकिस्मत है वो शख्स जो अहमदियत के हज अकबर में इस तमत्तो से महरूम रहे। क्या ही बदकिस्मत है वो शख्स जो अहमदियत के हज अकबर में इस तमत्तो से महरूम रहे। इसका क्या मतलब सर? मतलब अहमदियत के हज से दूर है? हज तो कोई नहीं, हज तो हज होता है, कहीं और तो नहीं हज हो सकता। मुझे इस बात की समझ नहीं आई सर। मैंने रेफरेंस दे दिया है, आप उसको वहाँ से खोल कर खुद देख सकते हैं। मैंने कोई एक भी लफ्ज़ अपने पास से इस्तेमाल नहीं किया। वो कह रहे हैं कि बदकिस्मत है वो शख्स जो अहमदियत के हज अकबर में, हज अकबर आपको पता ही है कौन सा होता है हज? जी बिल्कुल। उस हज अकबर में जो अहमदियत का हज अकबर है उसमें इस तमत्तो से महरूम रहे। एक हज तमत्तो भी होता है, अच्छा, जिसका वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका हराम बांधने से मना किया था ना। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, किसी सहाबी ने उनको कहा कि नबी अलैहिस्सलाम खलीफतुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने मना किया है हज तमत्तो का हराम बांधने से, यानी हज और उम्रे का इकट्ठा जो आप करते हैं उससे मना किया है। अच्छा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि हमने कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो हज तमत्तो से मुराद ये है। कहते हैं वो शख्स बदकिस्मत है जो अहमदियत के हज अकबर में इस तमत्तो से महरूम रहे, यानी वो वहाँ आए और मिर्ज़ा साहब के कब्र पे जाके हाज़िरी ना दे। चूँकि मुझे ज़ाती तौर से मालूम हुआ है
کہ بعض دوست اس کا خیال نہیں کرتے، اس لیے میں نے لکھ دیا۔ اکمل خادم سیگا تربیت قادیان، یہ ہے جی ان کا نام، ظہور اکمل، جنہوں نے میں نے کہا کہ شعر لکھے ہیں، محمد پھر اتار آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، معاذ اللہ غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ یہ ان کا مضمون ہے، اس کو سنیں، اس کو جنہوں نے ریکارڈ کر لیا ہے اس سے مستفید ہوں اور دیکھیں کہ ان کے عزائم کیا تھے اوائل میں، عزائم کیا تھے۔ یہ 18 دسمبر 1922 کا الفضل اخبار ہے، اس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اپنے لوگوں کی تربیت۔ کیا عزائم تھے؟ اب وہ عزائم نہیں رہے، پہلے تھے اب نہیں ہے؟ کیا پہلے عزائم تھے اب نہیں ہے؟ آپ کہنا عزائم تھے؟ نہیں، وہ تو ڈنگ تو نکال لیا نا مسلمانوں نے، ڈنگ تو نکال دیا ہے۔ ڈنگ نکال لیا مسلمانوں نے؟ ہاں، وہ تو جو کہتے تھے، وہ کیا ڈنگ تھا؟ ہاں ڈنگ یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ مکہ اور مدینہ کی چھاتیاں خشک ہو گئی ہیں، اب قادیان سے فیض جاری ہوگا۔ یہ ڈنگ نکال کے مسلمانوں نے باہر پھینک دیا ہے۔ یہ حج جو ہے، حج تو ہمارا مکہ معظمہ میں ہے نا، حج تو ہم یہ کون سا ہے حج اکبر؟ یہ احمدیت کے حج اکبر میں اس تمتع سے وہ محروم۔ سمجھائے نا حج اکبر کیا مطلب نکلا، آپ پورا سمجھائے نا۔ آپ خود سمجھے، تحریر آپ کی ہے، سمجھانا میں نے۔ حج ہمارا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت سے حج ہمیشہ ہمارا خانہ کعبہ میں ہی ہے۔ جی سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات کی؟ ہاں نہیں، آپ ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ ایک چیز کو لے کے تو ایک پورا محل بنا دیا جائے۔ آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہے، محل ہے، ریت سر، کی دیوار ہے۔ یہ جو آپ نے شعر پڑھا ہے نا، یہ جو شعر پڑھا ہے نا، یہ تو ہے اس کے اندر، جہاں تک مجھے میری اصلاح کیجیے گا، ایک غلطی کا ازالہ کے آخر میں دیا گیا یہ شعر۔ کون سا والا؟ نہیں اس میں نہیں ہے، یہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، یہ والا کہہ رہی ہیں؟ جی بالکل نہیں، یہ وہاں پر نہیں ہے، یہ 1906 کے البدر اخبار میں چھپا ہوا ہے، اکتوبر 6 اکتوبر، نہیں بھائی ذرا دینا حوالہ، 6 اکتوبر 1900۔ چلو دے دیتے ہیں حوالہ، 6 بھی چھپا ہوا ہے۔ اور جو اکمل جو ہے نا، وہ ان کا نام اور اکمل تھا، انہوں نے اپنے آپ کو ریفر کیا وہاں پہ، یہ بھی تھوڑا سا۔ لیکن یہ ان کا شعر تو نہیں ہے، حضرت مسیح موعود کا شعر نہیں ہے۔ ان کا نہیں ہے، یہ اکمل صاحب کا ہے، انہوں نے اپنے نام کو محمد دیکھنے کو اکمل، وہ جو اکمل ہے نا، انہوں نے اپنے نام کو استعمال کیا وہاں پہ۔ اچھا، اس میں کوئی توہین نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ ٹروتھ سیکر چودھری، ٹروتھ سیکر صاحب، اس میں کوئی توہین تو نہیں ہے آپ کے خیال میں نبی پاک کی؟ اکمل جو ہے بھائی، میں سمپل آپ کو بات بتا رہا ہوں، سوال کیا ہے کوئی توہین ہے اس میں، ہے یا نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیا سوال آپ کیا کر رہے ہیں۔ سمپل سوال ہے کہ اس شعر میں کوئی نبی پاک کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد ایک نے ہو اکمل، اس میں جو اکمل ہے وہ اس بندے کا نام۔ سوال کیا ہے اس شعر میں کوئی توہین نبی پاک کی ہے یا نہیں ہے؟ وہ آپ کا سوال بہتر جو کو ہے کہتے ہیں نا، آپ اپنے پاس ہی رکھیں، لیکن دوسری بات میں یہ سوال بھائی آپ ہوسٹ، یہ مجھے بتائیں عامر نذیر صاحب، اس سوال کا جواب لے دیں کیا اس شعر میں؟ ہیلو عامر نذیر صاحب بات سن لیں۔ ٹروتھ سیکر صاحب، میں نے سوال پوچھا ہے اس شعر میں توہین ہے یا نہیں نبی پاک کی، بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان کی تعریف اور جو ہے وہ ہر دن کے حساب سے بڑھتی ہے۔ میں نے یہ پوچھا اس شعر میں نبی پاک کی گستاخی، ہیلو میں اس شعر پہ مجھے شعر کا نہیں پتا، جو بھی آپ شعر لے کے آئے میں سناتا ہوں نا، سن کے بتا۔ نہیں، آپ سنا دیا آپ نے، نہیں تو آپ کو پتہ نہیں لگا، آپ کو نہیں پتا لگا اس میں گستاخی ہے؟ اس پہ محل نہ بنائے، منکروں کی میں محل نہیں بنا رہا، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں جو کہہ دیا بس کافی ہے، آپ اپنی یعنی تعویلات نہ کریں۔ ہیلو، نہ سوال کریں نہ کچھ، آپ میں ہمت ہے تو کہہ کے دکھائیں کہ اس میں گستاخی نہیں ہے۔ جی عامر صاحب، میں ان کو سمجھاتا ہوں، چودھری ٹروتھ سیکر کو 1 منٹ دیں۔ نہیں، آپ سے سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سادہ سا سوال ہے کہ اس شعر میں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے یا نہیں ہے، بس۔ مجھے جو شعر ہی پورا نہیں یاد، تو میں محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شامیں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے۔ اکمل سے کیا مراد لیا آپ نے؟ جو بھی مراد ہے، میں نے پوچھا ہے یہ شعر، نہیں جو بھی مراد ہے تو وہ بتائیں نا، وہ اس کا نام ہے بندے کا۔ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دیں، اس شعر میں گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیں، مجھے پورا شعر دیکھنا پڑے گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ، مجھے یہ شعر پورا دیکھنا پڑے گا؟ کیا زندگی میں اس سے پہلے آپ نے یہ شعر نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے آج سے پہلے یہ شعر نہیں دیکھا؟
शोर क्यों मचाते हैं आमिर रजा साहब? शोर तो आपका बहुत ज्यादा ऊंचा है, इतनी देर से आप शोर कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ एक फिक्रे का सवाल है कि क्या इस शेर में गुस्ताखी है या नहीं है, किसी से पूछ लें, इस फिक्रे का जवाब हाँ है या ना है। इस फिक्रे में कोई गुस्ताखी नहीं है। हाँ, चौधरी टूथ सिकर साहब आपको मगर लग के वाटर साहब दे, इस शेर में कोई गुस्ताखी नहीं, कहो एक बारी। कोई गुस्ताखी नहीं है इस, आपको ये तो इलामा इकबाल ने भी कहा हुआ है। एक मिनट ये तो आपके इलामा इकबाल ने एक मिनट चौधरी टूथ सिकर की तरह शुरू हो जाते हैं। आप खुद से एक मिनट, चौधरी टूथ सिकर साहब इस शेर में गुस्ताखी है कि नहीं है? और सर मैंने नहीं जवाब देना आपकी बात नहीं देना। वाटर साहब तुसी ते वाटर हो, तुसी ते अपनी सत्ता बरकरार रख दियो ना। ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਲਿਖਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਆਕੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਚ ਗੁस्ताखी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई जो मैंने सवाल पूछा है मैंने इसका जवाब मांगना है पहले। जी जी दोनों सवालों के इस जवाब सवाल का जवाब दें, क्या इस शेर में गुस्ताखी है या नहीं? जी जी आमिर साहब दोनों सवालों के जवाब देने हैं। हाँ जी, आप हम दोनों सवालों के जवाब देने हैं। हाँ आप हमें जी। लिखता है ना, नाम के साथ चौधरी लिखना आसान होता है ना, सिर्फ 3-4 वो लफ्ज लिखने, हरफ लिखने होते हैं, बंदा चौधरी बन जाता है। बस थोड़ा ही टाइम रह गया इनको, थोड़ा टाइम ही रह गया। जबान से सवाल का जवाब देने से जो लोग आरी हैं वो अपने नाम के साथ आप ये चौधरी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बताऊंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दें, मेरे सवाल का जवाब देंगे। आप लोग दोनों रिलैक्स होकर बात करें, नहीं देंगे इस सवाल का जवाब नहीं। रुतबा हर दिन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? रोज अब ये रुतबा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? अब ये मरते मर जाएंगे, इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। भाई आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं तो आप उनकी इज्जत करने से घबरा रहे हैं? ओ भाई ये इज्जत की है आपने, ये तो इस किस्म ये इज्जत की है, अगर इज्जत की है तो कहो ना ये इज्जत की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इसमें इज्जत है तो डरते क्यों हो, क्यों कहते हो कि इसमें तो हीन है, क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं कहते? तारीफें मजीद से मजीद बढ़ती हेलो हेलो, मैंने ये सवाल नहीं पूछा इज्जत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, मैंने ये नहीं पूछा भाई, मैंने ये नहीं पूछा कि नबी पाक की इज्जत बढ़ रही है कि कम हो रही है, मैंने ये तो नहीं पूछा। आप लोग जरा रिलैक्स होकर बात करें। वो जो कौसर आप ही ना, इस सवाल का जवाब ले दे मुझे हिम्मत करके बस इनसे। ये दोनों आदमी आप कुछ पूछ रही थी, इनको खवातीन के दरमियान ये लड़ाई शुरू कर देते हैं। कोई लड़ाई नहीं हो रही, सवाल का जवाब नहीं दे रहे, जवाब ले दें आप। ये तो उम्मे साहिबा से इनको कहें कि सवाल का जवाब ले दें, सवाल का जवाब ले दें भाई, लड़ाई का तो कोई मतलब ही कोई नहीं यहाँ पे। सवाल का जवाब दे दें, क्या इस शेर में तौहीन है नबी पाक की या नहीं है? इस शेर में नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है या नहीं है? और भाई नहीं है गुस्ताखी, चौधरी टूथ सिकर को कहो ना, आप तो वाटर हैं, आप तो सत्ता बरकरार रखते हैं, प्याले में डालो तो गिलास में डालो तो आप तो बराबर हो जाएंगे ना 1 सेकंड के बाद। उनसे पूछने आप तो वाटर हैं। वसल्लम का मकाम, उनकी इज्जत, भाई मैंने कोई मकाम के बारे में सवाल ही नहीं किया, नहीं पड़ती। मैंने ये सवाल पूछा है कि इस शेर में नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन है या नहीं है? आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और उनके मकाम को, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ ट्रुथ सीकर साहब, इस सवाल का जवाब कौन देगा, किससे पूछ कर देंगे? फोन कर लो, पीछे फोन कर लो, सेंटर में फोन करके पूछ के बता दो कि क्या इस शेर में नबी पाक की तौहीन है या नहीं है। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइड ही है, क्यों घबरा रहे हैं? ऐसे सवाल पूछे आके सब लोग डर के भाग गए हैं भाई, सब डर के पता नहीं क्यों भाग गए हैं। सब देख रहे हैं कि ट्रुथ सीकर जो है वो जवाब नहीं दे रहा, तो लोग इसलिए डर रहे हैं कि बम भी ना फट जाए एकदम से, कुछ चीजें यहाँ पे फट का जवाब सुना ही नहीं। क्यों नहीं जवाब देता, क्यों नहीं जवाब देता? जवाब तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए कि मैं बता देता हूँ, अब ये नहीं देंगे जवाब, अब ये नहीं देंगे जवाब, मैं बता देता हूँ, ये नहीं देंगे, ये मरते मर जाएंगे। फिर अगर आपने नहीं देना जवाब तो मुझे बोलने दें। भाई आपको कोई हक नहीं है हाशिया करने का, बस आपने बोल दिया जो बोलना था। क्या बोल दिया? मैंने तो सवाल किया था। आप अपनी हाशियादारी नहीं कर सकते। मैंने सवाल किया था, मैंने कोई आपको कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सवाल किया था। हाँ तो सवाल के मैंने सवाल किया, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सवाल का जवाब अगर नहीं है तो मुझे बात करने दे, मैं बताता हूँ कि गुस्ताखी है। जब आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की तारीफ नहीं करनी तो आपको क्या लेना देना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ से? आपका क्या लेना देना? देख लें कि आप कितने बड़े मुनाफिक हैं। अभी आप गालियां दोगे,
इसके बाद गालियां दोगे, बात तो सुन रहे हैं अब। लेकिन मरते मर जाओगे, इस सवाल का जवाब नहीं दोगे। नाइस थिंग भी जमात से हैं, आई थिंक उनसे पूछ लेते हैं जी। नाइस थिंग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। पहले अलामा साहब, सबसे पहली बात ये है कि ये उम्रा और हज के एक्सपीरियंस आपने बयान किए हैं। आपका ये वहाँ पे हज करने गए थे आप? जो भी आप इनसे सवाल करेंगे उसका जवाब कोई भी नहीं देगा। ये इनकी खासियत है कि उसका जवाब नहीं देंगे। सवाल का जवाब आया। हाँ, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो। मैं पीछे आग लगी हुई, मैं पानी लेकर आया हूं बुझाने के लिए। जो मौजू है उस पे आपने बात एक लफ्ज कहा है तो बता दें। हाँ, मैंने वो मौजू पर ही आके वो पढ़ के सुनाया उनका इक़्तिबास। नहीं कहा। हज अकबर, आपका हज अकबर दिखाया ना जो कादियान में होता है। हज अकबर दिखाया ना। हमारा देखने के लिए आप होते कौन हो? मैं कौन होता हूँ? मैं कौन होता हूँ? आप हमारे ये सवाल आपका सही है, मैं होता कौन हूँ? चले यार, इल्मी तरीके से बात बड़े गुनहगार आदमी हैं, इनको अल्लाह ताला की तरफ से दावत। अच्छा भाई सुने, मैं बात को ना अगर एक चीज को आपको अगर उर्दू की समझ नहीं आती तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है हम भाई अगर चला लें। अच्छा बात कर लेने दें, मुझे उनसे होश से पूछ लेने दें। सोफिया सिस्टर अगर कहें तो मैं जवाब दे दूं उस सवाल का जिसका ये जवाब देने से कासिर है। ठीक है, आप दे दें जवाब, लेकिन फिर उसको हम ड्रैग नहीं करेंगे। ये हाँ, लेकिन मैं जवाब दूंगा तो मैं चाहता हूँ अगर आप जवाब खुद नहीं देंगे तो आपकी तरफ से मैं जवाब देने लगा हूँ। सफिया साहिबा, ये देखें, ये हमें उतारा जा रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, आप जवाब दे दें। अगर आप नहीं दे सकते तो मुझे बोलने दें, मैं जवाब देता हूँ इस सवाल का। सफिया साहिबा, हमें उतारा जा रहा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अल्लाह के फजल के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं की गई। ये हुई ना बात, तौहीन नहीं की। आपके खलीफा साहब ने असेंबली में ये कहा था कि अगर हमारे मिर्जा साहब को ये पता चल जाता इस शेर का, उनके सामने ये पढ़ा जाता शेर, हमारे मिर्जा साहब इसको जमात से निकाल देते काजी ज़हूर अकमल को। कौमी असेंबली की कार्रवाई खोल के पढ़ें। आपके तीसरे खलीफा साहब मिर्जा नासिर ने कहा कि अगर मिर्जा साहब के सामने ये शेर पढ़ा जाता तो वो मिर्जा साहब इसको काजी ज़हूर अकमल को जमात से निकाल देते। नतीजा पता क्या हुआ? सुन लें। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अखबार अल फजल 1944 का, जो मैं अब खोल रहा हूं, ये निकाल के असेंबली में उनके सामने रखा। ये देखना। हाँ जी, जी सुने ना, अब बात तो करने देना भाई। आप तो हिम्मत आप में तो नहीं ना हुई। 10 मिनट आपसे सवाल पूछा, 10 मिनट आपसे सवाल किया गया, आपने जवाब नहीं दिया। तो आप अभी भी चल रहा है। अभी तक इनके जहन का फतूर जो है ना, जब ये भाई ये बात नहीं करने देंगे, ये मुझे बात नहीं करने देंगे। मुखातब हूं मैं सिर्फ अब ये मुझे बात नहीं करने देंगे। यार टॉपिक भी चेंज कर लेते हैं मेरा ख्याल है। आपने ब्रॉड को डाइवर्ट करने दो, वो आपने कर दिया। वो कितों डाइवर्ट हो गई है? मैंने तो सिर्फ तारुफ करवाया है कि ये काजी ज़हूर अकमल साहब का मजमून है जो मैंने पढ़ के सुनाया है। उसके बाद मैं काजी ज़हूर अकमल साहब का मैंने शेर पढ़ा, सुन तो लें। शेर पढ़ा तो मेरी बात सुने ना। शेर पढ़ा तो उन्होंने पूछा कि ये शेर जल्दी मौजू चल रहा था, जल्दी कर। मैं जल्दी लो जी पढ़ता हूँ। आप पानी का कुटकोले रख लो, तुसी पानी का कुटकोले यहाँ पे अल्लामा साहब मौत और ब्रॉड ठीक चल जाए। मैं कहता हूँ कि पानी का गिलास ऊपर लगे हुए कि 13 अगस्त बड़ी तवीले करके तो मैं बड़ा जमाते ओ चुप करोगे, सारे लोग नीचे हंस रहे पे। ओ भाई बात करने दोगे अब? मेरी बात सुनिए। मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोनों भाइयों से, प्लीज। अभी आज बहुत सारी बातें करनी है, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए ये यहाँ पे हम रुक गए ना पहले स्टेप पे तो मसला ख़राब हो जाएगा। ठीक है, जो बाकी आए हैं उनको सलाम दुआ करके फिर मैं दूसरा पोस्टर लगाती हूँ, क्योंकि मेरे एक चीज का ले लें बात, उसके बाद मैं चला जाता हूँ। क्या आपने जो मौजू रखा था
जो मौजू रखा था अलामा साहब ने उस पे बात की है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है? जी जी वही शेयर नहीं, किया मैं है। तो नहीं तो किया? हाँ, अपना क्या किया आमिर भाई, आपने तो वो झूठ ना बोलो, तहरीर जो है भाई सुने ना, सुने, मैं उनकी बताता लगा हूँ, दी। मैं सारा कुछ बताता हूँ रिकॉर्ड है, भाई, बताता हूँ आराम मैं। आराम से, आराम सारा से। कुछ रिकॉर्ड है। इसको कहते हैं मुनाफिकत। ओ भाई बताता हूँ मैं, हौसला तो करो ना। मैं उम्रा ये की कह है रहा हूँ, वैसे? लम्हा साहब वेरी सॉरी, मैं आप पे तनकीद नहीं करना चाहता। उम्रा की है आपने? यार बात करने देंगे कि नहीं नाज सिंह साहब? उनको बुलावा ही नहीं आया जी, उनको अल्लाह ताला ने बुलाया। आमिर अच्छा नजीर एक साहब मिनट, वो ये ट्रुथ इंसान है सीकर, ट्रुथ सीकर भाई आपको किसने उतारा? आप कह रहे हैं कि आपके मॉडरेटर्स उतार मैं रहे हैं, आपको, हाँ किसने जी, मैं उतारा? आपको ये बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम जब डिबेट हो रही थी तो आपने एक मॉडरेटर बनाया हुआ था साहिल को, ठीक है? दूसरा अच्छा जी। आपने मुझे मॉडरेटर बनाया और हम दोनों को ऊपर रहना था कि जब भी दोनों साइड से वो बाद में बात करते हैं, वो पिछली ब्रॉड की, क्योंकि उसके अंदर काफी परेशानी हो गई थी मुझे कि हुआ उसमें क्या है उस उसमें ब्रॉड के आपके बाद। मॉडरेटर ने मुझे उतारा, ठीक है? और आपको फिर बताया भी आपने जा रहा है कि ये नहीं करना था, उसने मुझे उतारा है, ठीक है? उसके बाद मैंने उसे उतारा है, तो आपने उल्टा जो है मुझे हटा दिया मॉडरेटर से, हालांकि आपको बताया भी कि वो जो साहिल अब ने इस ब्रॉड के ऊपर इन्हीं MDO को मसाइल की उतारा वजह था। से, इसी मसाइल की वजह से मैं वक्ती तौर पे सिर्फ उस ब्रॉड के लिए मॉडरेटर बनाती हूँ, हटा देती हूँ। कोई भी हमारे पास परमानेंट वो नहीं इशू है। नहीं है, वो अभी हटा दें, उसके बाद हटा दें, अभी लेकिन अवैस आपने, है, हाँ, अभी आप अवैस है कि अवैस मेरे किसी के साथ ये खिलाफ, कर और सकता है आपके काम? मॉडरेटर ने, जिसको आपने मॉडरेटर बनाया था, उसे मुझे ब्लॉक भी कर दिया आपकी ब्रॉड से। अवैस बहुत बाइस्ड आदमी है, इसने मेरे कमेंट्स भी अभी ब्लॉक किए हुए हैं, बहुत बाइस्ड आदमी। चलो अच्छा। तो सिकर भाई आप ना अलामा साहब से पूछ ले, लड़कियों में अच्छा एक्सपीरियंस। बनने की कोशिश करता है और तमाम मतलब अहमदियों आपने के साहिल साथ को, बड़े गलत नहीं मेरा किस्म ख्याल है की साहिल था, साहिल को मॉडरेटर बनाया, उसे मुझे ब्लॉक ही कर दिया। बहुत बाइस्ड आदमी है, मेरे कमेंट्स अभी भी अब ब्लॉक ऐसे है। बंदों का मॉडरेटर बनाएंगे जिन्होंने एक्शन लेना है ऑपोजिट ठीक है साइड। भैया, आपने भी इनके आप बैन लोगों ने खत्म तो हो वो जाए तो उतारा। हाँ जी ठीक है, अब आमिर भाई की बात लेते हैं और फिर जो बाकी लोग आए हैं उनसे बात करते हैं। एक्सपीरियंस इस पूछें वजह बाजी, तो इनसे एक्सपीरियंस पूछें प्लीज। मेरा वो सत्या अब साहिबा जो से ना जवाब देते एक रिक्वेस्ट है कि आमिर साहब को जी, भी मैं आप रिकमेंड करें कि ये भी उम्रा करें, ताकि रसूल पाक का मोहब्बत वाला हिस्सा भी इनकी हाँ शख्सियत। मैं बताता हूँ, अब मैं सुने कौन दो। होती हूँ उनको ये तो रिकमेंड अब करने आपने वाली? तारीफ करने से घबराते अब हैं, आपने इनको रो इनके सामने रख देना और रो पिट लिया तो गल कर लें दो कि मैं ऊंची आवाज च गल करा। फिर ये अगर मैंने आवाज अपनी ऊंची की तो आपकी आवाज ही नहीं निकलने देनी मैंने। सबको खुल आमिर के भाई अब कभी मैं भी बात नहीं करूंगी कहेंगे। इनसे। अब बस, अब स्टॉप 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 स्टॉप। अब प्लीज कोई माइक नहीं खोलेगा, नहीं तो मुझे नीचे उतारना पड़ेगा। मुझे नहीं अच्छा लगता इस तरह से आप लोगों को बच्चों की तरह कंट्रोल करते हुए। आप लोग रिक्वेस्ट मान लिया करें। आमिर भाई अब आप बोलें। हाँ जी, मैं ये अर्ज करने लगा हूँ कि असेंबली में इनके खलीफा साहब के सामने यही शेर रखा गया। इनके खलीफा साहब ने कहा कि अगर ये अशार हमारे मिर्ज़ा साहब के सामने पढ़े जाते तो मिर्ज़ा साहब काजी ज़हूर अकमल को जमात से निकाल देते। उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा साहब के सामने पढ़े गए हैं ये गुस्ताखाना अशार, जो आपके खलीफा साहब ने कहा कि इतने गुस्ताखाना हैं कि अगर हमारे मिर्ज़ा साहब के सामने पढ़े जाते वो इनको जमात से निकाल देते। तो उन्होंने कहा कि आपके मिर्ज़ा साहब के सामने पढ़े गए। सबूत उन्होंने ये दिया जो मेरे सामने 22 अगस्त 1944 का अल-फज़ल अखबार खुला हुआ है। इसमें खुद काजी ज़हूर अकमल साहब लिख रहे हैं, कहते हैं कि 13 अगस्त के इस अखबार आमिर अल-फज़ल भाई में। ये टॉपिक नहीं है अभी का। आपने जो है ना पहले इतना हम लोग जज्बाती हुए थे, लाकर जो है वो एक उनका ज़हूर अकमल का जो है वो जो सुना दिया, उसके बाद से ये टॉपिक नहीं था। ठीक है, अगर आपने हमें आप आईना दिखाया। कोई मसला नहीं। अगर आप नहीं सुनना चाहती मैं बंद कर दे। मैंने सिर्फ ये बताना था कि ये तो मान भी नहीं रहे कि ये गुस्ताखाना अशार हैं। इनके खलीफा साहब वहां मान कर आए हैं कि ये गुस्ताखाना अशार हैं। नबी पाक की सख्त तौहीन की इस काजी ज़हूर अकमल ने, और यही वो अशार हैं जो असेंबली में पेश किए गए और वहां माना गया कि ये खलीफा साहब, तो इनको अब स्टैंड विद खलीफा साहब, इनको अब बोलना इसलिए इनके लिए मुसीबत बनी हुई है। अगर ये कहें कि गुस्ताखाना है तो भी मरते हैं, अगर इनकार करें तो भी मरते हैं। बहरहाल उन्होंने वजाहत की है। बात करेंगे आखिरी एक मिनट में बात खत्म कर देता हूं, अगर ये आपके लिए मुश्किल है, बोझ है। मैं ये कह रहा हूं कि काजी ज़हूर अकमल साहब ने कहा कि ये अल्फाज जो है ना ये मैंने अपने पास से नहीं किए। मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाह में। ये मैंने मिर्ज़ा साहब के खुतबा इल्हामिया को ही अपने अशार में ढाला है। मनकूल उन्होंने कहा जो खुतबा इल्हामिया है जिसमें मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा हुआ है कि जिसने इस बात से इनकार किया कि नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत 6,000 से ताल्लुक़ रखती है जैसा कि 5वें हज़ार से ताल्लुक़ रखती है, बस उसने हक़ का
اور नस कुरान का इनकार किया, बल्कि हक यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत छठे हज़ार के आखिर में यानी इन दिनों में बनिस्बत उन सालों के अकवा और अकमल और अशद है, बल्कि 14वीं रात के चांद की तरह है, बल्कि 14वीं रात के चांद की तरह। ये है खुतबा इल्हामिया का इक़्तिबास, जिसका तर्जुमा उन्होंने पेश हम एक अलग सेटिंग रखेंगे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये खुद मिर्जा साहब की तलीम है। जी जी, ये जो आप खलीफा ने कहा कि गुस्ताखाना अशार हैं, ये खुद आपके मिर्जा साहब की तलीम है कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाह में, मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल गुलाम अहमद को देखे कादिया में। ये आपके मिर्जा साहब की तलीम है। यहाँ जो बंदा अद्दी पिचदी बात करता है ना, मैं कई दफा सुनता हूँ, मुझे गुस्सा आता है कि ये अद्दी पिचदी बात ना पेश किया करें। ये सारी तलीम इनके खुद मिर्जा साहब की है और खुतबा इल्हामिया में मिर्जा साहब की ये तालीम है कि ये 14वीं के चांद की तरह है। मेरा वजूद, मेरी शख्सियत वो तो 14वीं के चांद की तरह है, नबी पाक पहली रात के चांद की तरह है, मैं 14वीं के चांद की तरह हूँ। इस पे करेंगे इस पे बात करेंगे। बहरहाल आपका हज अकबर मैंने दिखा दिया। अब हमारे पास ठीक है, वो तो दिखा दिया, लेकिन ये अब ड्यू रहा आपके ऊपर। इसके ऊपर बकायदा हम लोग टाइम रखकर इसके ऊपर बात करेंगे आपसे इस मामले में। ये मामला क्या है? मुझसे कोई सवाल करना तो कर ले, नहीं तो मैं इजाजत लूंगा। क्लियर हो जाए, दोबारा पे बात ना करें। जो मैंने बात अभी तक कही है, इसमें किसी ने कोई सवाल करना है तो कर लें, नहीं तो मैं इजाजत लूंगा। बाद में ये ना कहें कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बाकी खामोश है। कौसर आपने कुछ कहना था वो कह दें आप। हाँ जी, जो बहन जो है ना, मैं सच बता रही हूँ, ये बहन डर जाती हैं, ट्रुथ सीकर भाई बहन डर जाती है। ये कुछ पूछ रही थी तो इनको पूछने देते हैं, उसके बाद हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। कौसर आपी जी, अस्सलाम वालेकुम। ये सारे बहुत प्यारे हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप घबराया ना करें, आप आया करें, आपको अच्छा लगेगा। और देखिए मैं गुस्सा भी कर लेती हूँ, लेकिन ये लोग मेरी बात मान लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी, आप बताएं, आप कुछ कह रही थी। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि जब किसी का, जैसे हम सारों को इस बात का शऊर है, हम लोगों ने अपने अपने ज़मानों में शोरा को पढ़ा हुआ है। मीर दर्द हो गए, मीर तकी मीर हो गए, इन सारों को देखा है मैंने कि जब इन्होंने कोई अपना नाम देना होता है तो इन्होंने अपने तखल्लुस बनाए हुए हैं, यानी कि शेर के अपने मतलब शायरी करते वक्त उसको वो पुट करते हैं, तो वो ऐसी जगह पे पुट करते हैं जिसमें मायने दिए जाते हैं, वो बेमाने लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होता है। इस शेर को अगर आप डिस्कस करने वाली हैं तो दोबारा से फड्डा शुरू हो जाना है मेरी बहन। इस शेर को ना मैं लगाऊंगी ब्रॉड पे, और मेरा वादा रहा कि हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नहीं, कोई प्लीज डिस्कस ना करे, मैंने सिर्फ ऐसे इसको बताना है कि लेकिन वो फिर आधी बात रह जाएगी ना। बस ठीक है, फिर मैं खामोश हो जाती हूँ यहीं पे। आप जज़ाकल्लाह, आपने मैंने कहा आपको फील हो कि आप खुल के बोलें, आप आएं। लुबना भी आती हैं जब उनके पास टाइम होता है। तो ये बहनों की ब्रॉड है और भाई वाकई में इज्जत करते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। देखें, ये वाली बात कहीं की कहीं पहुंच सकती थी, लेकिन भाइयों ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया और मैं बहुत इनकी शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। उस्मान, अगर मैंने उनकी बात कंप्लीट होने देती ना तो फिर ज़रूरी था कि आमिर भाई उसका जवाब देते, और मैं नहीं चाहती कि अभी वो बात दूसरी तरफ जाए। मेरे पास और चीज़ें बहुत हैं करने वाली। अच्छा जी, अब हमारे पास, हाँ जी, सीकर भाई। जी ठीक है, जो इन्होंने बात रखी है एक तो टॉपिक से हटके रखी है, उसमें जो अपनी हाशिया राई बीच में मिक्स करते हैं, ये हवालों के अंदर अपनी हाशिया राई बड़े कारीगरी से मिक्स कर देते हैं। टॉपिक आएगा तो हम चौधरी साहब आपको टाइम, एक सेकंड सिस्टर, मैंने अर्ज किया आपके पास टाइम है, जो मैंने हाशिया राई की हो उस पर सवाल करना है तो कर ले, नहीं तो मैं जाने लगा। एक मिनट आमिर नदीर साहब, खामोश हो जाए। और वो कारीगरी हाशिया राई की है वो सारी की सारी झूठ था। अगर ये झूठ है, हाँ, अगर ये झूठ है, जितनी बात मैंने कही है, पूरा महल बना देते हैं लेकिन सारा झूठ होता है। अगर ये झूठ है तो इसके बारे में आप सवाल कर लेना कि कौन सी बात का कौन सा सोच है। आमिर नदीर साहब, आप टॉपिक पे आ गए। मैंने कहा अगर मैंने ये झूठ बोला है तो आप मुझसे हवाला मांग लें। असेंबली का हवाला मांगना है, अखबार अल फजल 13 अगस्त का मांगना है, 22 अगस्त का मांगना है, सब कुछ है, हमने क्यों मांगना है आपसे? चलो, तो फिर झूठ तो मैंने कोई नहीं बोला। बता रहा हूँ ना, आप झूठ बोला है, जो आपकी हाशिया रही वो झूठ है। कौन सा लफ्ज है हाशिया रही? जिस तरह मुनकरीन जो है वो झूठ वाला लफ्ज बता दें ना, जाओ वो अगली आयत के हिस्से पे उंगली रख देते हैं। ट्रुथ सीकर वो लफ्ज आप करके हाशिया यार, वो लफ्ज करके कारीगरी दिखा के तो बड़ी अपनी तरफ से कहानियां बनाते हैं। यही आपकी बस बताएं ना, मैंने क्या यार क्या कहानी बनाई है? कौन सा लफ्ज नजायज बोला है? बताएं तो सही। आप बताती कहानियां। हाँ जी, कर ले
बता दो जो मैं मैंने बताता हूँ ज्यादती की मैं है वो बताता बता हूँ मैं जी जी बताता हूँ बताओ आपने टॉपिक पे बात करने की बजाय हाँ ब्रॉड को डाइवर्ट किया, अच्छा ठीक है। ठीक एक्सपीरियंस का मतलब जाके डिक्शनरी में देख लें कि क्या होता है, ठीक ठीक है। ठीक है ठीक बस यही इतराज है अगर ना नहीं एतराज, यही इतराज है अगर ना नहीं एतराज है कि भाई एक बात के लिए जिस चीज का किसी को इल्म ना हो और उर्दू की समझ आ ना रही हो, वो कोई भी कुछ कह दे। वो किस सेंस में उस शायर ने कहा और किसको क्या उर्दू नहीं समझ आ रही किसको किसको उर्दू नहीं समझ आ रही जब मियां खलीफा ने कह दिया तो फिर ये खैर बहरहाल इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। अब मैं ये वाला टॉपिक आमिर भाई बिल्कुल इस पे डिस्कस बस करना इतना ही है चाहिए, मैं ये करेंगे ये मैं वाला ये टॉपिक करेंगे है हमारा। ट्रुथ सीकर इस टॉपिक को उम्रा हल मैं किया तुमने, इस टॉपिक को उम्रा हल छोड़े, किया। असल टॉपिक पे आए। मैं असल सब टॉपिक की बात कर रहा हूँ ना, उम्रा हज किया है तुमने कोई? मैंने किया है। मैं ट्रुथ सीकर से पूछ रहा हूँ, आपसे बाद में पूछूंगा। इंशाल्लाह करूंगा। करूंगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ तो उन लोगों का काम है जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो अलामा साहब फिर क्यों आए हैं? नहीं भाई उधर ना जाना, ट्रुथ सीकर उधर ना जाना। उधर वो आपके खलीफा साहब कह के गए हैं कि मक्का और मदीना की छातियां खुश्क हो गई हैं। और वो कहते हैं आपके खलीफा साहब ने आपको बताया है कि मक्का और मदीना की छातियां खुश्क हो गई हैं, तो आप ना जाना उधर, आप उधर ना जाना। अगर जाना है तो अपना असली पासपोर्ट नंबर दे के मुझे जाना। ट्रुथ सीकर अलामा साहब जा रहे थे, उन्होंने जाती याद रहे या उधर की होटल की रिजर्वेशन या कॉपी की वो जो ट्रेवल आपकी है डॉक्यूमेंट, वो कोई मुझे दे के जाना। अब तो ना जाना, वहाँ आपके खलीफा साहब बता के गए हैं कि मक्का मदीना की छातियां खुश्क हो गई हैं, कादियान से फैज मिलेगा, कादियान जाओ। लेकिन अगर वहाँ जाना है तो ड्रेस दे के जाना। मुझे इजाजत दें, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है आपके उलमा को जो है सऊदी अरब बाहर निकाल रही है, पाबंदियां लगा रही है। ये प्यारी फोटो वाला पकड़ के जो है वो उनको पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं। चलें जी, अब जो नए आए हैं हमारे पास काफ़ी देर से, सीकर भाई, सीकर सही है। अब माइक पुटो। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले भी आपने नाम लिया था लेकिन वो